Welcome back to Election Exchange. The fourth phase of the Lok Sabha election will take place on 13th of this month. 96 constituencies across 10 states and UTs will vote in this round. Today, we turn the spotlight on Andhra Pradesh and Telangana. The people of Andhra Pradesh will vote to elect a new state government as well as vote in the Lok Sabha election. Andhra is seeing a triangular contest. The ruling YSR Congress party is facing a challenge from Chandrababu Naidu's Telugu Desam party, which is in alliance with the BJP and actor Pawan Kalyan's Janasena party. The Congress-led India bloc is also in the fray in alliance with Left. All the 17 Lok Sabha constituencies in Telangana will also vote on the 13th of May. The Congress government in the state is led by Revanth Reddy, is also locked in a triangular contest with the BRS and the BJP. The election is a fight for survival for the BRS led by Chandrasekhar Rao after it was trounced by the Congress in the recent state election. Joining me now is Sanjay Tiwari, Senior Associate Editor of Andhra Pradesh and Telangana for News 18. Sanjay, thank you very much for joining us. दो बातें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में. एक तो प्रधानमंत्री 3 बार तेलंगाना जा चुके हैं. कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की फैमिली को विजिट किया, उनसे मिले, उनसे बातचीत करी. आज वो राजा राजेश्वरी स्वामी टेम्पल भी गए करीमनगर में. इन दो बातों की क्या अहमियत है तेलंगाना चुनाव से पहले? संजय, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? संजय, आप शायद Okay, we are getting Sanjay Tiwari back with us, but let me tell you that in Telangana, you have a total of 17 seats going to polls on Monday. 4 seats were won by the BJP last time around in 2019, 3 by the Indian National Congress, 9 by the TRS, which is now BRS, and 1 by the AIMIM. What we were talking about yesterday was significant in light of politics in Telangana, and this was a message actually to the Congress party as well. The Prime Minister visiting the family of former Prime Minister P.V. Narasimha Rao and greeting them. And now this was just about 3 to 4 days ahead of the election. Today he went to Raja Rajeshwari Swami Temple in Telangana's Karimnagar before kickstarting the Lok Sabha poll campaign for the day. Now, this is the Prime Minister's third visit to Telangana. The BJP has some own internal challenges, but we believe, and reports coming in, that the BJP is poised to do better in Telangana compared to other states. However, let's see how the party performs. In Telangana, you also have a challenge from the Congress party, which had actually swept the assembly election. I believe Sanjay Tiwari is with us now. Sanjay, अगर आप मुझसे सुन सकते हैं, दो बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगा. कल प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की फैमिली से मिले, आज राजा राजेश्वरी स्वामी टेम्पल गए. क्या अहमियत है इन सब बातों की, और बीजेपी का कितना प्रचार देखेंगे हम अगले 2 दिन में? देखिए, प्रधानमंत्री इस मामले में बहुत ही कैंपेन में इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि जो लोकल जो चीजें हैं उनसे किस तरह से कनेक्ट किया जाए. इसीलिए वो मंदिर भी जाते हैं, इसलिए वो यहाँ के इस तरह की जो लोकल चीजें हैं उनको आगे वो करने की कोशिश भी करते हैं. आज करीमनगर में, वारंगल में जैसे जब वो पब्लिक मीटिंग कर रहे थे तो पब्लिक मीटिंग के बीच में लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए लोगों की ड्रेस की भी तारीफ कर दे रहे थे. तो इस तरह से कुल मिला के प्रधानमंत्री का जो कैंपेन है बहुत ही इंटेंस हो रहा है. बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल पे बहुत बीजेपी का जो इलेक्शन कैंपेन है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हमला किया और लगातार जो कांग्रेस की सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पे आर जो डबल आर टैक्स की बात की. अब डबल आर टैक्स में वो इशारा कर रहे थे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो यहाँ से कुछ ऐसे इस तरह की वसूली हो रही है, और उनका कहना था कि वो दिल्ली जा रहा है, वो राहुल गांधी, दूसरे आर का मतलब राहुल गांधी को टारगेट कर रहे. तो कुल मिला के प्रधानमंत्री या बीजेपी का जो इलेक्शन कैंपेन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. कांग्रेस से सीधा मुकाबला है तेलंगाना में, क्योंकि बीआरएस जो है अब यहाँ पर उतने ज्यादा मुकाबले में नहीं रह गई है. असेंबली इलेक्शन में बीआरएस का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा था, और अब मुकाबला चूंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है तो बीजेपी के लिए थोड़ा सा ये जो बैटल ग्राउंड है वो आसान हो गया है लड़ना, क्योंकि कांग्रेस से जो नेशनली लड़ रही है और वो राहुल गांधी को टारगेट करना या यहाँ की गवर्नमेंट को टारगेट करना उनके लिए आसान है. कांग्रेस के लिए जाहिर तौर पर ये चुनाव जो है वो यहाँ पर लोकसभा में
तो ये इस बात को साबित करेगा कि क्या वो टेम्पो मेंटेन कर पाई जो असेंबली इलेक्शन में उन्होंने किया था, या फिर वो जो है इसमें मोदी का जादू चल रहा है। बीआरएस जो तीसरी पार्टी जो इस समय थर्ड रन स्टेज में नजर आ रही है, वो एक तरह से बैटल ग्राउंड में उतना अच्छा परफॉर्म करती हुई नहीं नजर आ रही जैसा कि असेंबली इलेक्शन से पहले कहा जा रहा था। इस समय तो लोग ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि बीआरएस जो है अपनी सिंगल डिजिट में ही रहेगी, और लोग जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो संख्या काफी कम बताई जा रही है। हालांकि बीआरएस का दावा है कि वो परफॉर्म करेगी और फिर से वो सेंट्रल में जो भी इस तरह की गवर्नमेंट बनेगी, कोalition की अगर कोई बनती है, तो उसमें वो रोल प्ले करेगी। तो इस तरह से तेलंगाना जो है, बीआरएस को अपना भविष्य साबित करना है, बीजेपी को यहाँ से मैक्सिमम सीट लेनी है। पिछली बार 4 सीटें बीजेपी ने यहाँ से जीती थी, और इस बार उसकी टारगेट है कि कम से कम 8 से 9 सीटें यहाँ से लेके जाए, और इस वजह से जाहिर तौर पे ये दक्षिण का द्वार कहा जाता है तेलंगाना, तो इस लिहाज से बीजेपी के लिए बड़ा बूस्ट होगा अगर वो तेलंगाना में अच्छा परफॉर्म करती है। संजय, एक आंध्र प्रदेश के बारे में मैं बात कर सकूं। आंध्र प्रदेश में हम असेंबली इलेक्शन भी देखेंगे, लोकसभा चुनाव भी देखेंगे। वाईएसआर कांग्रेस यहां पावर में है स्टेट में, 135 सीट्स जीती थी उन्होंने असेंबली में। इस वक्त असेंबली में और लोकसभा के लिए चुनाव कैसा लग रहा है? कौन ज्यादा स्ट्रांग है इस वक्त? देखिए, आंध्र प्रदेश में स्थिति जो है वो लगातार बदलती जा रही है। लास्ट टाइम जिस तरह वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास यानी जगन मोहन रेड्डी के पास एज नजर आ रहा था, और उन्होंने उसके बाद जिस तरह से वेलफेयर स्कीम अपनी यहाँ पे अनाउंस की, उसको इम्प्लीमेंट किया, लोगों को बहुत सारी फ्रीबीज बांटी, वो अब उनके पास बहुत कुछ देने को नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो पेंशन योजना है वो 3,000 से बढ़ाकर 3,250 कर देंगे। अब दरअसल जो जितना स्टेट एक्सचेकर पर वो बर्डन है, उसको वो जानते हैं कि अब और बढ़ाना बहुत असंभव है। तो वेलफेयर स्कीम में नया कुछ बहुत ज्यादा करने के लिए उनके पास नहीं है। तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि जो वेलफेयर स्कीम यानी जो फ्रीबीज वो बांट रहे थे वो कंटिन्यू रहेंगी, इस बात का वो प्रॉमिस कर रहे हैं। टीडीपी भी इसी तरह से अपना जो इस बार वो अलायंस के साथ है, जो जनसेना पार्टी है पवन कल्याण की वो उनके साथ है, बीजेपी है। और चूंकि जो सेंट्रल का इलेक्शन है, जो लोकसभा का इलेक्शन है, वो कहीं ना कहीं मोदी के फेस पे लड़ा जा रहा है, ये यहाँ पर इस तरह का जो इम्प्रेशन जा रहा है, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये टीडीपी, जेएसपी और बीजेपी का जो अलायंस है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन ओके, असेंबली इलेक्शन की बात करें, वहां थोड़ा सा टफ है, नेक एंड नेक फाइट है, और ये परिणाम जो है वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। अभी इस पे कहना हो कि कोई किसी को एज है तो थोड़ा सा मुश्किल है। जी, मुश्किल है। संजय तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम आपके पास वापस आएंगे अगले कुछ दिनों में, और मंडे को चुनाव के दिन हमें बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। हम आपसे बात करेंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बारे में। विद दैट इट्स अ रैप ऑन द स्पेशल ब्रॉडकास्ट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। गुड बाय।